नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला जिसमें प्रोडक्ट फंक्शन होगा sin to the power mx cos to the power nx dx integral within the limit 0 to pi by 2. This is equals to gamma m plus 1 by 2 gamma n plus 1 by 2 upon twice gamma m plus n plus 2 by 2. This symbol is gamma. Gamma n is equal to factorial n minus 1. This is the relation between gamma and factorial. Gamma 5 is factorial 4. Gamma half equal to under root pi. This is the standard result it will get from the gamma and beta function in a special function series. So gamma half equal to under root pi. जब हम गामा को फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, then what is the need of the gamma? Just you see in the expression of the gamma, numerator upon denominator, in the denominator is, the formula says it's 2, and for the rational number we cannot find the factorial or not evaluate the factorial for the rational number. So certainly it will convert it to the gamma form, but this result is also very particular. We will get the result when the denominator has only 2, because we have know the result gamma half equal to under root pi. How it will convert? Like gamma 5 by 2. It will break. Actually gamma n is equal to n minus 1 gamma n minus 1. This is the formula to break the gamma. So n minus 1, 5 by 2 minus 1 is 3 by 2. Gamma 3 by 2. Gamma half. 3 by 2 can be break half, gamma half. And gamma half is under root pi, so you will get under root pi 3 under root pi upon 4. Gamma n gamma 1 minus n is pi upon sine n pi, where n is lying between 0 and 1. This is also one of the standard result of the gamma beta function, and this result may be used in the Laplace transform in the semester 4. Gamma n gamma 1 minus n equal to pi upon sine n pi. This is the standard result. Say, suppose 0 to pi by 2 sine to the power 4 theta cos to the power 3 theta d theta. This is our target to evaluate the integral. So from this formula you can write 4 plus 1 by 2 3 plus 1 by 2 upon twice gamma 4 plus 3 plus 2 by 2. m plus 1 by 2, m बराबर 4, n बराबर 3, m और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आ गया गामा 5 by 2. दिस इज 3 plus 4 गामा 2. गामा 2 is factorial 1. तो यहाँ आया twice गामा 9 by 2.
ये ब्रेक हुआ गामा 5/2 फैक्टोरियल 1 is 1 ट्वाइस गामा 9/2 को लिख सकते हैं 7/2 5/2 3 7/2 5/2 गामा 5/2। बड़े गामा को छोटे गामा तक जैसे फैक्टोरियल में करते हैं बिल्कुल वैसे ही ब्रेक करना है। तो यहाँ 5/2 गामा 5/2 गामा 5/2 गामा 5/2 कैंसिल और ये रिजल्ट 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्ट आया 2/35। अब इसमें देखें हम जो हमने वॉलीस फॉर्मूला पढ़ा, जैसे 0 to π/2 साइन की पावर 7 थीटा डी थीटा, सिर्फ साइन की पावर 7 थीटा है, तो वॉलीस फॉर्मूला से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं 7 6 4 5 2 3। ऑड नंबर्स के लिए यहीं तक आएगा 2/3। ये आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम देखें 0 to π/2 साइन की पावर 7 थीटा कॉस की पावर 0 थीटा डी थीटा, एनीथिंग द पावर 0 is 1, तो इसको लिख सकते हैं कॉस की पावर 0 थीटा। यहाँ आ गया 7 + 1/2 0 + 1/2 अपॉन ट्वाइस गामा 7 + 0 + 2 7 + 8 गामा 4 is factorial 3 gamma 4 is factorial 3. This is gamma half upon twice gamma 9/2. Factorial 3 is 3 2 1 2 gamma half 7/2 5/2 3/2 1/2 gamma 1/2. This is cancel out. (32/35). इसमें क्या मिस्टेक हो गई? 2 2 4 2 16 आ गया। चलिए, लेकिन इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है? तो ये इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा 16/35। तो यहां हमने देखा कि ये तो वॉलीस फॉर्मूले से रिजल्ट था और ये आपका जो है वो गामा फंक्शन से रिजल्ट था। इसका मतलब वॉलीस फॉर्मूला इज द पार्ट ऑफ द गामा फॉर्मूला, जिसमें अगर एक साइन की पावर 0 या कॉस की पावर 0 है, जो कि सिंगल साइन की पावर और कॉस की पावर को विद इन द 0 to π/2 इवेल्युएट करता है वॉलीस फॉर्मूला, उसमें अगर पर्टिकुलर वैल्यू अगर 0 है तो भी वो इवेल्युएट हो सकता है गामा बीटा फंक्शन से। लेकिन इस रूल की भी एक लिमिट वही है कि इसकी जो इंटीग्रल की लिमिट है वो 0 से π/2 होनी चाहिए। अगर वो 0 से π/2 नहीं होगा तो इसमें इस रिडक्शन फॉर्मूला में ये नहीं कन्वर्ट होगा। Evaluate 0 to infinity
x cube dx upon 1 plus x square power 9/2. वन प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है, ऐसे केस में x बराबर हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा टेन थीटा। x बराबर टेन थीटा, dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये लिमिट x की है व्हेन x इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू 0। व्हेन x इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी इज इक्वल्स टू टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/2। अल्टीमेटली इंटीग्रल बना 0 to π/2 10 क्यूब थीटा dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया सेक की पावर 9 थीटा डी थीटा। जीरो टू π/2 सेक 7 साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, 1 अपॉन कॉस बराबर सेक क्यूब, तो यहां आ जाएगा सेक 4 साइन क्यूब थीटा, और नीचे आएगा सेक 4 थीटा। 1 अपॉन सेक 4 थीटा इज कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। ये रिजल्ट इसका आएगा गामा 3 प्लस 1/2 गामा 4 प्लस 1/2 अपॉन ट्वाइस गामा 3 प्लस 4 प्लस 2/2। 3 प्लस 1 4 गामा 2 इज फैक्टोरियल 1, गामा 5/2 अपॉन ट्वाइस गामा 9/2, 9/2 को लिख सकते हैं 7/2, 5/2, गामा 5/2, दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज 1, ये आ गया 2/35। जीरो टू ए की पावर 4 dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इवेलुएट करना है। लेट x बराबर a साइन थीटा, ए कॉस थीटा जो भी ले लें आप, क्योंकि ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में, यहाँ x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा लेंगे आप, dx बराबर a cos थीटा डी थीटा। When x equal to a, it implies that a equal to a sin theta, theta equal to π/2. When x equal to 0, 0 equal to a sin theta, theta equal to 0. 0 to π/2. A to the power 4 sin to the power 4 theta, a cos theta d theta,
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए की पावर 5, ए कैंसिल, ए की पावर 4 आ जाएगा, 0 to पाई बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा से कैंसिल, और यहां आ गया डायरेक्ट आंसर देगा और इस फॉर्मूले से निकालने 4 3 1 2 और पाई बाई 2, ये आ गया 3a स्क्वायर पाई बाई 16, ये आंसर होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं अब। डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में a to b fx dx is equal to capital Fx from a to b, that is fb minus fa। ये डेफिनेशन होती है डेफिनेट इंटीग्रल की। दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। इफ fx का इंटीग्रल कैपिटल Fx हो, सो दिस इज fb माइनस fa, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। प्रॉपर्टी फर्स्ट जो है वो कहलाती है वेरिएबल रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। a to b fx dx is equal to a to b ft dt। x को वेरिएबल t से या किसी भी वेरिएबल से वेरिएबल को रिप्लेस किया जा सकता है। इसका प्रूफ एक लाइन का है, राइट साइड लेके चलें। a to b ft dt इंटीग्रल किया, फंक्शन ft स्मॉल फंक्शन का कैपिटल ft ये दिया हुआ इंटीग्रल, लिमिट आ गई फ्रॉम a to b एंड दिस इज इक्वल टू fb माइनस fa। और ये देखें इक्वेशन नंबर a से fb माइनस fa बराबर किसके है, a to b fx dx। तो ये लेके चले हम a to b ft dt, ये बराबर हो गया a to b fx dx। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट हो गई। प्रॉपर्टी सेकंड, a to b fx dx माइनस b to a fx। अगर जगह आपस में बदल दी जाए तो माइनस आ जाएगा, लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाया जाए तो।
इसका प्रूफ देखिए, राइट साइड इसमें भी लेके चल रहा है। माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स फ्रॉम बी टू ए लेना है, उल्टा ले लिया, बी टू ए माइनस एफ ए माइनस एफ बी, और ये बराबर हो गया एफ बी माइनस एफ ए। दिस इज इक्वल टू फ्रॉम ए, फ्रॉम ए इसको लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। हाउ ये प्रूफ हो गया। प्रॉपर्टी थर्ड, if C is lying between A and B, then A to B f x dx is equal to A to C f x dx plus C to B f x dx। तो ब्रेक किया जा सकता है अगर C एक ऐसा पॉइंट हो जो A और B के बीच में लाई करता है, तो हम इस इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं फ्रॉम A टू C एंड C टू B एफ एक्स डी एक्स। इसका भी देखिए राइट साइड प्रूफ करने के लिए, A टू C एफ एक्स डी एक्स, C to B f x dx is equal to capital F x from A to C, capital F x from C to B, f c minus f a, f b minus f c, FC से FC cancel, and this is equals to FP minus FA, and this is equals to A to B fx dx from A। प्रूफ हो गया। इस प्रॉपर्टी को एक्सटेंड भी किया जा सकता है A to C, C to D, D to E, E to B। अगर ये पॉइंट्स हैं जो कि A और B के बीच में लाई करते हैं, तो इनको ब्रेक किया जा सकता है। A to B f x dx is equal to A to C f x dx, C to D f x dx, D to E f x dx और E to B f x dx। फाइनाइट नंबर ऑफ रीजन्स अगर इसमें A और B के बीच में लाई करते हैं, तो इनको हम ब्रेक कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस लिहाज से कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि इंटीग्रल सिंपलेस्ट हो जाएगा। 0 to A f x dx इक्वल टू 0 to A f of A minus x dx।
राइट हैंड साइड लेके चलते हैं. 0 to a f of a minus x dx. Let a minus x बराबर t. माइनस dx बराबर dt. When x equal to 0, it implies that t equal to a. When x equal to a, it implies that t equal to 0. x बराबर 0 है तो t a है तो t 0 है. a माइनस एक्स टी और dx बराबर आया माइनस dt. इस माइनस को हटाने के लिए इसको लिख सकते हैं 0 to a ft dt. ये कहाँ से आया? बाय प्रॉपर्टी सेकेंड. अगर इसको बदलना हो माइनस आ जाता है फ्रॉम प्रॉपर्टी सेकेंड. और ये लिख सकते हैं 0 to a fx dx. ये आया फ्रॉम प्रॉपर्टी फर्स्ट. वेरिएबल रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, t को x से रिप्लेस किया जा सकता है. तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट से t की जगह x आ गया. और देखिए राइट साइड लेके चले थे और ये बराबर हो गया 0 to a fx dx. हेंस प्रूफ. प्रॉपर्टी फिफ्थ, माइनस a to a fx dx इक्वल टू minus a to a fx dx equal to twice 0 to a fx dx when fx is an even function, और ये 0 होगा when fx is odd function. We know that 0 is lying between minus a to plus a. This integral can be expressed as minus a to 0 fx dx plus 0 to a fx dx. रिजल्ट की तरफ गौर करें तो हमें ट्वाइस 0 to a fx dx यानी कि ये चाहिए. इसको यहां पर इक्वेशन नंबर ए मान लें. इसको अलग से इवेलुएट करेंगे. माइनस a to 0 fx dx, इसके लिए h माइनस एक्स इक्वल टू टी माइनस dx इक्वल टू dt. when x इक्वल टू माइनस ए रखेंगे, इट इंप्लाइज दैट t इक्वल टू a. इसमें रखोगे आप when x इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट t इक्वल टू 0. तो ये इंटीग्रल लिखा जा सकता है माइनस a पर a, 0 पर 0, f x बराबर माइनस टी, dx बराबर माइनस dt. इसको लिख सकते हैं
आपस में जगह चेंज कर दें, 0 to a f ऑफ माइनस एक्स dx, दो प्रॉपर्टी लग गई यहां पर, जगह चेंज करने पे लगी प्रॉपर्टी सेकेंड, और t को x में लिखा बाय वेरिएबल रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। तो ये इंटीग्रल, इसकी वैल्यू ये आई, a से देखें आप, फ्रॉम a दिस इंटीग्रल इज 0 to a f of minus x dx plus 0 to a fx dx। अब यहां दो केसेस बनते हैं, when fx is an even function, इवन फंक्शन है तो f माइनस एक्स बराबर fx, इवन फंक्शन होता है, x is replaced by minus x, the functional value remains unchanged like cos x। अगर ऐसा है तो ये बराबर, ये 0 to a f माइनस एक्स बराबर fx बनेगा 0 to a fx dx, और ये जुड़ के बना ट्वाइस 0 to a fx dx। दूसरा केस, when fx is odd function, f of minus x equal to minus of fx, odd function की प्रॉपर्टी से, तो यहां पे f of minus x बराबर आया माइनस 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of x dx, और दिस इज इक्वल्स टू 0। तो जब फंक्शन ऑड है ये 0 होगा, जब फंक्शन इवन है तो ये रिजल्ट लिखा हुआ ट्वाइस होगा, एंड प्रूफ। Next property 6, 0 to 2a fx dx जीरो टू 2a f of x dx बराबर इतना, दोनों कंडीशंस दी हुई हैं। 0 से 2a में भी हम जो कह सकते हैं, 0 से 2a, a इज लाइंग बिटवीन 0 to 2a, a बीच का पॉइंट होगा, इसको हम लिख सकते हैं 0 to a to 2a, बीच में ब्रेक करें, एक 0 to a fx dx और एक आ रहा है a to 2a fx dx। रिजल्ट 0 to a में लाना है, इसको जरूरत नहीं है, इसको लेते हैं, लेट a to 2a fx dx। लेट 2a माइनस एक्स बराबर t, ये सब्स्टिट्यूट क्यों किया? क्योंकि इसी फॉर्म में फंक्शन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। तो 2a माइनस एक्स बराबर t माइनस dx बराबर dt, when x equal to a, which implies that t is equals to 2a minus a equal to a। When x equal to 2a, it implies that t equal to 0। तो ये आ गया
ए पर इस बराबर ए पर t बराबर a है, 2a पर 0 है, f x को लिख सकते हैं 2a माइनस टी और dx को लिख सकते हैं माइनस dt, और ये बराबर लिख सकते हैं, इस माइनस से इसकी लिमिट बदलेंगी 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx। यहां भी वही दो प्रॉपर्टी रख गई, एक प्रॉपर्टी सेकंड और एक प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो ये बना फर्स्ट इंटीग्रल बना 0 to 2a f of 2a माइनस x dx। यहां भी दो कंडीशंस दी हैं, एक दिया है f 2a माइनस x बराबर fx, अगर ये fx के बराबर है तब तो 0 to a fx dx और 0 to a fx dx से जुड़ गया, ट्वाइस 0 to a fx dx हो गया। जब दिया है f 2a माइनस x बराबर माइनस ऑफ fx, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 0 to a fx dx प्लस 0 to a fx dx एंड दिस इक्वल टू 0। इस तरीके से 6 डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको बता दी। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।